Good morning, dear students. I welcome you all in today's lecture, and today I am going to take geography chapter, that is industries. So children, first of all I would like to tell you what do you mean by industry. What is industry? We have the various kinds of industries in our country. So industry, it refers to an economic activity which is concerned with the processing of raw materials into finished goods. You have seen that in factories the raw materials are processed into a various final goods, into a finished goods with the help of the machines which are present in the factories. Okay, so this process, it changed the shape, form, size, texture as well as appearance of all the primary products और raw material. ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल होता है, आपका जो प्राइमरी रॉ मटेरियल्स होता है वो इंडस्ट्रीज़ में आता है. यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग से क्या होता है, इट चेंजेस द शेप, इट चेंजेस द फॉर्म, size and textures and appearance of the products, and this process is called as manufacturing. This is called as a manufacturing. So children, on this earth we have various types of resources. Our country is rich in resources which is provided to us by nature, and in this nature we get various kinds of forest products also, agricultural products also, okay, and minerals also. So some of these resources can be used directly, but others need to be processed by manufacturing in the industries into a finished products. So these industries play a very important role in modern times, and side by side it satisfies our desires, our needs, and side by side it gives employment to millions of people in the world. So children, we have various kinds of industries in our world. Okay, so industries are classified according to the raw materials, size and ownership. First of all, according to raw materials we have agro based industries, mineral based industries, क्योंकि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है. मिनरल्स भी हमको अर्थ से मिलता है, इट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स. आफ्टर दैट मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेरीन मीन्स सी बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो सी से हमको प्रोडक्ट मिलता है. एंड वी हैव फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑल्सो. After that, according to the size also, industries can be classified into large scale industries and into small scale industries. जो बड़े होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग काम करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बनती है, that is called as large scale industries. और जहाँ पे छोटे तौर पे आपका काम होता है उसको हम small scale industries कहते हैं. और industries ownership के according भी है. Ownership means who is owning the industry. Who is owning the industry means इसका कौन जो है ओनर है, इंडस्ट्री किसके उसमें है. तो उसमें भी बेस्ड है प्राइवेट सेक्टर. जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर बेस्ड होता है. उसके बाद जॉइंट सेक्टर होता है, फिर कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, एंड उसके बाद पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है. सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच वी हैव in the world. After that, I am going to tell you each and everyone in detail after that. Now, according to the raw material, raw material में देखिए ये चार इंडस्ट्रीज है: एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. नाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, दे यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स एज द प्रोडक्ट्स, एज द रॉ मटीरियल्स टू कन्वर्ट इट इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट्स, इनटू अ फाइनल गुड्स. सो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं, इनके रॉ मटेरियल्स के रूप में इनको यूज़ किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. जैसे कि आपकी कॉटन टेक्सटाइल हो गया. कॉटन टेक्सटाइल में कॉटन क्या है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, जो प्लांट से हमको मिलता है. वेजिटेबल ऑयल क्या है, वो भी हमको प्लांट से मिलता है. इसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, वो क्या होता है, वो एनिमल बेस्ड होता है. इनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं. आफ्टर दैट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आता है. दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल ओर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं. नाउ ये जो प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ के होते हैं, ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फीड करते हैं. ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं इसके ऊपर दूसरी इंडस्ट्रीज़ बेस्ड होती हैं. जैसे आप देखिए आयरन है, आयरन ओर से आयरन बनाया जाता है, एल्युमिनियम है, स्टील है. इनके ऊपर दूसरी इंडस्ट्रीज बेस्ड है. जैसे रेलवे कोचेस है, रेलवे कोचेस को आयरन चाहिए तो वो इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट होता है. मशीनरी है, मशीनरी के लिए भी आयरन चाहिए. तो दीज आर टोटली बेस्ड ऑन मिनरल बेस्ड
इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है आपका मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज दे यूज द प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी एंड द ओशंस एज द रॉ मटीरियल्स। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपका फिश ऑयल हो गया, सी फूड हो गया। आफ्टर दैट वी हैव फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज दे यूटिलाइज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज द रॉ मटीरियल्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऐसे जैसे कि वैक्स हो गया आपका, फॉरेस्ट से हमको वैक्स मिलता है, गम मिलता है, पेपर मिलता है, ये सब चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती है, तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। इवन हर्ब्स आर ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड ऑल। सो दीज आर called as the industries which are based on the raw materials, that is agro based industries, mineral based industries, marine based industries and forest based industries. Okay, now you can see on the basis of raw materials, देखिए कॉटन ये रहा, वुल है, जूट है, जूट से बैग बना, वुल से ऊन बनी आपकी, कॉटन से थ्रेड बना, उसके बाद कपड़े बनते हैं। सिल्क टेक्सटाइल से, सिल्क क्या है, सिल्क कोकून से फॉर्म होता है, ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट है जिससे कि जो है उनके थ्रेड से हम लोग सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। उसके बाद देखिए रबर इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द, इट इज़ रबर प्लांट से ऑब्टेन होता है, रॉ मटेरियल जिसका रबर होता है। शुगर देख लीजिए, शुगर केन से, टी देख लीजिए आपकी आसाम टी लीफ प्लांट प्रोडक्ट हो गया, कॉफ़ी हो गई आपकी अगेन प्लांट प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल है, जो भी ऑयल है आपका सब आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है। ये देखिए अब आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ है, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ है, पेट्रोकेमिकल फील्ड्स है, पेट्रोलियम ऑल्सो वी ऑब्टेन इट फ्रॉम द मिनरल्स एंड ऑल। आफ्टर दैट these are marine based industries, seafood, okay, fresh seafood we have here and fish oil is here, so these are marine based industries. After that forest से हमको कागज मिलता है, पल्प से जो है उसके कागज बनाया जाता है, जिस कागज को हम यूज़ करते हैं, so this is a forest based industries. So children, read it till here about the industries which are based on the raw material. Tomorrow we are going to start with the size of the industries.